we are now propagating the public library movement throughout the country, and also we are covering school libraries in various parts of the country. For example, more than 900 school libraries in Himachal Pradesh are covered under our program. Also, school libraries are covered under Rajasthan, Uttar Pradesh, etc. in various parts. Also, some educational libraries, college libraries, etc. are also benefited in Uttarakhand. So we have during last these 48 years, we have achieved a lot. We have propagated the public library movement throughout India through establishment of new libraries, also through upgrading the services of various libraries, public libraries in collaboration with state governments. Obviously, the state governments, without the collaboration of the state governments, we cannot do anything, because library is a state subject, unlike education, which is up in the concurrent list. So we have to depend on the state governments. We must salute today the foot soldier of our public library movement, that is the librarians who are working under great difficulties. You know that in many parts of India, specifically in rural India or suburban India, the libraries are being run by a single man. So he has to come to the library day in and day out to extend the facilities to the masses. We have to remember that public libraries, through public libraries, the peoples who are not so rich or who doesn't have resources to procure books or to have other access to knowledge are benefited. So our programs are targeted to that marginalized section of our society who doesn't have the resources, enough resources to pursue their quest for knowledge, right? So Raja Rammohun Library Foundation until date has there are around 46,000 public libraries in India. We have been able to extend our facilities to around 34,000 public libraries or more than that during these years. So this is the day we celebrate as our foundation day, and we should remember the contributions made by our former employees specifically during the formative stages of Raja Rammohun Library, when the schemes were devised, when the activities were finalized in consultation with the state government. So we must extend our gratitude to our former employees who have really contributed a lot. We must also remember, as I said already, that we must salute the endeavor of the public library personnel who are working in various parts of the country. So on behalf of Raja Rammohun Library Foundation, we express our gratitude for spreading the movement of public libraries in our various parts of the country. सबसे पहले तो मैं आपको राजा राम मोहन रॉय जी के आज के जो सेलिब्रेशन हो रही है, जो बर्थ एनिवर्सरी का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं, सच ए डिफिकल्ट टाइम, कि एक जो सेलिब्रेशन जिस तरह से होनी चाहिए थी और जिस तरह से हम कर सकते थे, हम कलकत्ते में जिस तरह से कर सकते थे, उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी जब अच्छा समय आएगा, हो सकता है हम दोबारा से इसको करें और एक राजा राम मोहन रॉय जी की स्मृति में जो एक मेमोरियल लेक्चर देना है, उसे दे सकें। मैं सोच रहा था कि कुछ आपसे बात करूं इस मौके पर, और बहुत ज्यादा देर नहीं, बहुत थोड़ी सी देर बात करूं, क्योंकि जब अगले वर्ष कभी जब अच्छे वक्त होंगे और ऐसा नहीं होगा और आप मुझे बुलाएंगे, हो सकता है उस वक्त मैं डीजी ना हूं, जब आप बुलाएंगे तो मैं आके बहुत अच्छा सा लेक्चर दूंगा जो मैं लिख कर लाके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी मेमोरियल लेक्चर्स होते हैं वो लिखे जाने चाहिए और उसके बाद उसको लिख के हम उसे पढ़ें। एक उसकी जो सैंक्टिटी होती है, जो
जो उसकी बात होती है उसी में होती है कि पहले उस आदमी की स्मृति में लिखा जाए, किसी भी एक विषय पर लिखा जाए और लिखने के बाद उसको एक विधि पूर्वक उसको पढ़ा जाए, लेकिन वो शायद इस बार संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि आज इस पावन मौके पर हम ये कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि हम राजा राम मोहन रॉय जी से क्या सीख सकते हैं, आज के संदर्भ में हम क्या-क्या सीख सकते हैं। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, जब मैं आपके साथ रहा और हूँ, जो कुछ किताबें मैंने वहाँ पढ़ी और जो कुछ बाद में मैंने पढ़ा, उससे कुछ बातें निकल कर आई हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात जो मेरे सामने आई कि जिस समय में राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म हुआ, वो समय क्या था? वो कैसा समाज था? उस समाज की क्या विशेषताएँ थीं? उस समाज में किस तरह के लोग रहते थे? उस समाज की क्या सोच थी? और और उस सोच से निकल के आगे बढ़ना, उस सोच के विपरीत काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आसान बात नहीं है कि एक ट्रेडिशनल समाज में, एक कंजर्वेटिव समाज में जो है, जो वहाँ की मूल्य हैं, जो वहाँ का रहने-सहने का तरीका है, उसको हम उसको चैलेंज करें, उसको हम चुनौती दें। आज के संदर्भ में ये बहुत आसान है। आज हम बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि आज का समय और प्रकार का है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए उस समय में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस एक व्यक्ति का ये सब कुछ कहना एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। हम ये मानेंगे कि जब भी हमें किसी व्यक्ति को समझना है, तो उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझें, कि उस समय पे जाकर समझें। अब जैसा आपको मालूम है कि उनका जन्म जो था वो 1772 में हुआ था। मतलब कितनी पुरानी बात हो गई। 2 साल के बाद आपको मालूम ही है कि हम उनकी 250वीं जो है वर्षगांठ जो है उसको मनाएंगे। तो तो 1772 में उनका जन्म हुआ और जो उनका जन्म हुआ था वो एक हिंदू परिवार में हुआ था और एक वैष्णव जो सेक्ट है, जो एक बहुत कंजर्वेटिव प्रकार का होता है, उस तरह के एक परिवार में उनका जन्म हुआ। और हम ये मान के चलेंगे, जब किसी का जन्म ऐसे परिवार में होता है कि वो व्यक्ति उसी प्रकार के मूल्यों को अपने अंदर लेकर आएगा, उसमें वो मूल्य जो है वही आएंगे। लेकिन जरा एक बात जो गौर करने लायक है, जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये कि उनके पिता ने तो जो उनकी मौलिक जो शिक्षा थी वो दी, जो मौलिक शिक्षा जो उस परिवार में आ सकती थी वो दी, लेकिन उन्होंने साथ में ये करा उसके लिए, राजा राजा जी के लिए किया, राजा राम मोहन राय जी के लिए करा कि उनको और तरह के जो ट्रेडिशंस थे और तरह की चीजें थी उससे अवगत कराया। ये परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ऐसे परिवार उस समय में जो थे वो किस प्रकार के परिवार होंगे, जिन्होंने कोशिश करी कि अपनी जो जो कुछ हम जानते हैं वो तो हम रखें, लेकिन उसके अलावा और कुछ जानने की कोशिश करें। अब ये आज के संदर्भ में थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो राजा राम मोहन रॉय जो थे, सबसे पहले उन्होंने जो फारसी भाषा है, उसमें निपुणता हासिल करी, पर्शियन लैंग्वेज, और उसके बाद वो पटना गए और पटना में जाके उन्होंने अरबी भाषा को सीखा। देखिए एक तो अपनी मातृभाषा है ही जो बांग्ला, और बांग्ला के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम करा, बांग्ला भाषा के लिए बहुत कुछ काम करा। बल्कि कुछ लोग ये मानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और लोगों ने जो कुछ काम करा भाषा के लिए, वो राजा राम मोहन रॉय जी का जो काम था उसके ऊपर उन्होंने उसका निर्माण किया। तो जो पटना गए, पटना में जाके उन्होंने अरबी भाषा सीखी। देखो 3 भाषाएं आ गई, और जब भी हमें ज्यादा भाषाएं आती हैं तो हम उन भाषाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बनारस गए। देखिए उस समय में
आज के समय में ये सब होना बहुत आसान है, आज के समय में कलकत्ता आना बहुत आसान है, लेकिन उस समय में कितना मुश्किल होता था, जहां महीनों लगते थे लोगों को पहुंचने के लिए। उसके बाद वो बनारस गए और बनारस में जाके उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। अच्छा, इन सब भाषाओं को सीखना ही काफी नहीं था, बल्कि उन भाषाओं में जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, जो कुछ लिटरेचर उपलब्ध है, उसको उन्होंने पढ़ा। जैसे कि जो हमारी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार उन्होंने अरबी भाषा में एरिस्टोटल और यूक्लिड, जिसकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, यूक्लिड, इनके कामों को उन्होंने अरबी भाषा में पढ़ा। और इसके अलावा उन्होंने और जो कुछ उपलब्ध था उन भाषाओं में उसको पढ़ा। और इन भाषाओं को समझने पे, जैसे अरबी भाषा है या जो फारसी भाषा है, इसको समझने पे उनको ये हुआ कि उन्हें और धर्मों की जानकारी प्राप्त हुई, जैसे इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब देखिए, हर जगह अगर मैं उनके जीवन को देखूं तो हर जगह शुरू से लेके आगे तक एक अध्ययन हो रहा है, हर चीज को एक कंपैरेटिव जानते हैं। अब क्या है, वो जो है वो एक धर्म को दूसरे धर्म से उसकी तुलना करते हैं, और इस सब जो तुलना करने का एक सबसे बड़ी जो चीज उनको हासिल हुई, वो उन्होंने ये महसूस करा कि सारे धर्म जो हैं वो एक हैं। देखिए, सिर्फ कहना और एक चीज को महसूस करने में बड़ा फर्क होता है। मैं अगर ये कहूं आपसे कि हम सबको ईमानदारी से रहना चाहिए, बात एक हो गई। दूसरी है कि हम अपने जीवन में उस ईमानदारी के जो गुण हैं, उस ईमानदारी की जो संस्कृति है, उसको लेकर आए। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एक चीज को जानना और एक चीज को महसूस करके उसको प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने उन धर्मों का एक अध्ययन करना शुरू करा, अलग अलग धर्मों का, और उस सब धर्मों के अध्ययन करने से वो इस बात पे पहुंचे कि सब धर्म जो हैं वो एक हैं, सबका जो संदेश जो है वो एक है। और सब धर्मों में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यूनिवर्सल सिस्टरहुड, उसका एक मैसेज है कि हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, और इसमें धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, ये जो पक्ष है, यह है जो उन्होंने पढ़ा, जो हम पढ़ के हम सीखते हैं। हमने अलग अलग भाषाएं पढ़ी, उन भाषाओं में जो सामग्री उपलब्ध है उसको उन्होंने हासिल करा, एक चीज को दूसरी चीज से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करा, उस तुलनात्मक अध्ययन करने से कुछ बातों पे वो पहुंचे, जैसे कि मोनोथीज्म, कि धर्म जो है सब एक ही है, और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसके बारे में मैंने बताया, ये एक है। दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो पक्ष है, वो है क्षेत्र कार्य का। क्षेत्र कार्य बहुत ही एक अहम चीज है, और इस क्षेत्र कार्य से हमारा तात्पर्य है जाकर चीजों को समझना। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब मैं कलकत्ता आने वाला था आज से 2.5 साल पहले ज्वाइन करने के लिए, तो लोगों ने मुझे तमाम बातें जो थी वो कलकत्ते के बारे में बताई, तमाम बातें बंगाल के बारे में बताई लोगों ने। और मैंने उससे पहले कभी कलकत्ते में रहा नहीं था, अगर आया भी था तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आता था किसी काम से और फिर चले आता था। अच्छा, अब जो है लोगों ने जो मुझे बताया, मैंने उसको समझने की कोशिश करी, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण था कलकत्ते के बारे में, कलकत्ते के लोगों के बारे में, उसमें कब तब्दीली आनी शुरू हुई, उसमें कब परिवर्तन आना शुरू हुआ, जब मैं कलकत्ते आके रहा। इसको बोलते हैं क्षेत्र कार्य, जाके उन चीजों को समझना, वहां के संदर्भ में वहां जाके चीजों को देखना कि वहां सब किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो ये कहा जाता है कि जब ये राजा राम मोहन रॉय जब 15 साल के थे, तो इन्होंने अपने घर को त्याग दिया,
और उसके बाद 2 से 3 साल तक ये जो है तिब्बत में इन्होंने भ्रमण किया और वहां इन्होंने बुद्धिज्म को सीखा, तांत्रिक बुद्धिज्म को सीखा और वहां के जितने भी ट्रेडिशंस थे उसको समझने की कोशिश करी। यानी कि क्षेत्र कार्य से जो उनको उपलब्धि हुई, क्षेत्र कार्य से जो उन्होंने जाना, वो ये था कि किस तरीके से अलग अलग समुदाय रहते हैं, किस तरीके से अलग अलग जो धर्म है वो किस तरीके से कार्य करते हैं, कैसा लोगों का सोचने का ढंग है, लोगों की समझ क्या है, इस सब को उन्होंने समझा। और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने आके जो हिंदुओं के तमाम ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन करा, संस्कृत भाषा में अध्ययन करा और जो भाषाएं जानते थे उसके बाद अध्ययन करा। और उसके पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी पर्शियन भाषा में। एक छोटा सा पैम्फलेट था और जिसमें उन्होंने, और ये बहुत उस संदर्भ में आप देखिएगा, उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि ये जो मूर्ति पूजा है, अलग अलग धर्मों की मूर्ति पूजा है, ये सब जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो धर्म का जो है वो एक ही संदेश है, धर्म का एक ही मानना है कि हम सब जो है एक है। अब ये जो है तीसरी बात हुई। पहली बात जो है जो मुझे उनसे समझ में आती है वो है कि अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करना, अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं उसको अध्ययन करना और उस तुलनात्मक अध्ययन से बहुत कुछ समझना। दूसरा है जो हमें समझ में आता है वो क्षेत्र कार्य है, क्षेत्र कार्य करना, जाके लोगों को देखना और लोगों के बीच रह के उसको समझने का प्रयास करना। और तीसरी चीज जो हमारी समझ में आती है वो है एक जो है क्रिटिकल, जो है आलोचनात्मक, एक आलोचनात्मक विचार रखना। हर चीज को ऐसे ही नहीं मानना चाहिए, हर चीज को बहुत एक आलोचना की दृष्टि से देखना चाहिए। और इन चीजों को जब हम मिलाएंगे, हम 3 चीजों को मिलाएंगे कि अलग अलग भाषाओं में अध्ययन करके अलग अलग साहित्य को पढ़ना, क्षेत्र कार्य करना, और तीसरा एक जो है आलोचनात्मक और कई दफा कटु आलोचनात्मक, बहुत ज्यादा क्रिटिकल एक अप्रोच रखने से हम जो है अपने विचारों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 1803 के करीब जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसमें उन्होंने नौकरी करी। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकरी करने का जो कारण था, उनका जो विशेष कारण ये था कि वो अंग्रेजी भाषा में जो है काबिल होना चाहते थे, अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते थे। और इससे ये हुआ कि वो पर्शियन, बांग्ला तो उनकी मातृभाषा थी, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत और अब जो है अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं का उन्होंने अच्छी तरह से ज्ञान कर लिया। और सिर्फ इनका ज्ञान ही प्राप्त नहीं करा, बल्कि इन भाषाओं में जो राजनीति शास्त्र पर जो सामग्री उपलब्ध थी, या जो इतिहास पर था, या जो कानून व्यवस्था पे था, या अर्थव्यवस्था पे जो चीजें उपलब्ध थी, उस सबको उन्होंने पढ़ा। और 1809 में क्या हुआ कि वो रंगपुर में दीवान की हैसियत से ट्रांसफर हुए, दीवान टू द कलेक्टर। और उसके पश्चात उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले ली और 1815 से वो कलकत्ते में बस गए। अब यहाँ जो है जब मैं सबको पढ़ रहा था, उनके जीवन को समझने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे एक चीज याद आई। वो क्या है कि अक्सर जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, तो वो कुछ काम नहीं करना चाहते। वो एक रिटायर्ड जीवन का मतलब होता है कि अब तो सारा काम कर लिया, अब हमें जो हमारे पास पैसा है, जो हमारी पेंशन आ रही है, उससे हम काम चलाएंगे और अब हमें कुछ नहीं करना। मतलब ये भी एक बड़ा भारी एक शोध का विषय है कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो क्या करते हैं। और जो मैंने देखा है वो ये है कि रिटायर्ड लोग सिवाय जो है एक बहुत ही एक प्लेसेड, एक आराम का जीवन व्यतीत करने की कुछ और नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मॉडल मिलता है,
रिटायरमेंट के बाद का एक दूसरा मॉडल मिलता है। और वो जो दूसरा मॉडल है, और मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली कि हम अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है, जब हम रिटायर हो जाए तो हमें किस तरीके से व्यतीत करनी चाहिए। जो हमने अपने जीवन में आज तक जो हमने प्राप्त किया है, उसके आधार पर कुछ और करें। तो ये कहा जाता है कि अपना सारा कार्य समाप्त करने के बाद, अपने रिटायरमेंट के बाद, वो एक धार्मिक रिफॉर्मर बन गए और उन्होंने इस दौरान में बहुत अध्ययन करा। और उन्होंने क्या करा कि जो बहुत सारे रीति रिवाज थे, वो जो रीति रिवाज थे जिनमें जिनमें जहां जो मानवता के मूल्य हैं वो खत्म करे जाते थे, हैं? जैसे कहा जाता है कि जो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जब सती होते देखा तो उनका मन जो था बिल्कुल बेचैन हो गया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू करा। तो जब उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे जो है धार्मिक सिद्धांत हैं, हमारे रहने सहने के जो जो तरीके हैं, वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने उन सब के खिलाफ जो है एक आवाज उठाई। और एक सबसे बड़ी बात ये थी जो मुझे यहाँ समझ में आता है कि जो हमारा RRLF है उसका जो उद्देश्य है, सबसे बड़ी बात ये थी वो ये कि उन्होंने जो जानकारी उन्होंने प्राप्त करी, जो कुछ उन्होंने सीखा, उस सब को जो आम जनता तक लाना, आम जनता तक करना, ये मेरे ख्याल से उनके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। और ये बात जो है, जो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ख्याल आया कि यही हम लोग जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन में, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो कुछ प्राप्त करते हैं उसको हम उसको मासेस तक, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा इसके ऊपर और लोगों को बताया, और बहुत कुछ जो था उन्होंने बांग्ला में लिखा ताकि लोग उसको समझ सके। तो कभी भी जो है सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए, सामाजिक जो है बोध, सामाजिक जो सोच है उसमें परिवर्तन लाने के लिए ये जरूरी है कि हम जो है हर तरफ पहुंचे। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो फाउंडेशन है, RRLF जो फाउंडेशन है, वो बिल्कुल उनके बताए हुए रास्ते पर चल रही है। हम भी ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मासेस तक अपना ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करें। मैं ये मानता हूं, और ये अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ये मानता हूं कि RRLF एक जो है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इस बात को पूरी अच्छी तरह से मानता हूं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि किताबों से हम डील कर रहे हैं, एक रिसर्च का एनवायरनमेंट पैदा करना, एक किस तरीके से हम जो है समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके से हम जो है एक अच्छी एक लाइब्रेरी की ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं, ये हमारे साथ है। इसीलिए जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, कोशिश करेंगे कि आगे बहुत अच्छी तरीके से हों, उस सबका बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। मैं बहुत प्रभावित रहा RRLF में, और मैंने बहुत कुछ वहां से सीखने की कोशिश करी। तो अंत में ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो नाम है RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये बिल्कुल उपयुक्त नाम है, क्योंकि हम जो हैं जो उनके जीवन के जो मुख्य बिंदु हैं उसको लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि हमें सब भाषाओं का साहित्य को समझना है, हमें सब भाषाओं के साहित्य को जानना है, और जितनी हम भाषाओं को जान सके वो अच्छा रहेगा। हमने तुलनात्मक अध्ययन करना है हर चीजों का, हमें क्षेत्र कार्य करना है, उस क्षेत्र कार्य से हमें समझना है, और एक आलोचनात्मक जो विधि है, एक आलोचनात्मक जो विवेचना का जो तरीका है उसको रखना है। और साथ में हमें जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद जो हम कर सकते हैं, जो हमने सीखा है, वो हम आगे लोगों तक पहुंचाएं।
इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना आगे आने वाले चले। आज के इस दिन में मैं अपने सारे फाउंडेशन मेंबर्स जितने भी है, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे जितने साथी हैं, जो साथी हमारे रिटायर हो चुके हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। जो डायरेक्टर साहब मुझसे पहले थे, अरुण जी, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जो है चेयरमैन साहब से लेके और जो फाउंडेशन की और जो मेंबर्स हैं और जो मेंबर जो रिटायर हो चुके हैं और जो अब हैं और जो आगे हमारे आएंगे, हम सब एक परिवार हैं, हम सब एक हैं और हमें इन सबको देखते हुए जो बताए हुए उद्देश्य हैं, जो आरआरएफ के उद्देश्य हैं, उनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नमस्कार। As we have come to end of this short online event, I would like to thank our honorable chairman, Sri Kanchan Gupta, who suggested to observe the birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy and the foundation day of RRRLF through an online event. I extend very hearty vote of thanks to our DG, Professor V.K. Srivastava, for his valuable and inspirable message and also telling something new about Raja Ram Mohan Roy and his work. Sir, we will definitely look forward for your Raja Ram Mohan Roy annual memorial speech next year. My heartfelt thanks to both of our deputy directors, Sri Somen Sarkar, for his welcome speech, and Sri Subimal Mukherjee for his support. I extend my thanks to Sri Sauvik and also to Mohit for providing technical support to make the event uninterrupted. Though it was a bit problem, but it was purely of internet connectivity. But anyhow, once again, I thank them. I would like to thank each and every one of you for joining online and participating in today's event. The present circumstances have not turned out yet to be a truly fruitful one. Apart from COVID-19, the devastating effects of cyclone like never before have really caused immense damage to mankind. Therefore, I hope that you all are safe and take care of yourselves and your families. Hope we will overcome these things soon. Thank you very much.